A very good morning to all my dear students. How are you all? I am Shalini, your English teacher, and today I am going to explain you chapter 2, The Sound of Music, from your book Beehive. This chapter has two parts, and today we are going to discuss part 1. Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. Evelyn Glennie was a deaf girl, and in spite of being deaf, she became a world-famous musician. This is a very inspiring story for all of us, so let's hear it. Before you read, God may have taken her hearing, but He has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. गॉड ने उनकी हियरिंग पावर ले ली थी, लेकिन गॉड ने उनको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया. दैट वॉज हर सेंस ऑफ फीलिंग. जो हम लोग सुन सकते हैं वो उसको फील करती थी. कैन यू एवर बिलीव कि म्यूज़िक जिसको हम कानों से सुन के एंजॉय करते हैं, शी यूज टू फील इट. वो उसको बिना कानों के फील करके, सेंस करके उसको सीखती थी और उसको एंजॉय करती थी. सो टू स्टार्ट विथ पैराग्राफ 1. Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. It means rush hour था, morning rush hour, जब सबको बहुत ज़्यादा जल्दी होती है अपने अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने की. That was a underground train platform, means जिसको हम मेट्रो के नाम से भी जानते हैं. ये वहाँ पर एक सीन है. And a slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. और वहाँ पर एक पतली सी लड़की, और she was of 17 but she was so thin and slant, so she was not looking of her age, she was looking younger, छोटी लग रही थी. And she was nervous but excited, and she was feeling the vibrations of the approaching train. कि ट्रेन आ रही है, उसकी vibrations प्लेटफॉर्म पर हम सबको पता लग जाती है. And she was feeling that vibration. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London. That was her first day in the Royal Academy, prestigious Royal Academy, London. This is here mentioned here, and daunting enough for any teenager fresh from the Scottish farm. Daunting means frightening. काफ़ी डराने वाला, एक नर्वस करने वाला एक्सपीरियंस था कि she is going to join that prestigious academy in London for the very first day. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. लेकिन उसके सामने एक सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि शी वॉज प्रोफाउंडली डीप. वो सीखने जा रही थी म्यूज़िक, मगर वो पूरी तरीके से बहरी थी, सुन नहीं सकती थी. पैराग्राफ 2. Evelyn Glennie's loss of hearing had been gradual. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. एवलिन ग्लेनी का जो लॉस ऑफ हियरिंग था, शी वॉज नॉट डीफ बाय बर्थ. उनको ये जो प्रॉब्लम हुई, ये ग्रेजुअली हुई, धीरे धीरे. और उनकी मदर, शी रिमेंबर्स व्हेन शी वॉज 8 years, एवलिन वॉज 8 years, जब एवलिन 8 साल की थी, तब कुछ प्रॉब्लम उन्होंने नोटिस की थी. ये बैठी हुई थी एवलिन, एंड शी वॉज वेटिंग कि जब उनका टर्न आएगा तो शी विल प्ले पियानो. मीन्स छोटेपन से ही ये म्यूज़िक में इंटरेस्टेड थी. दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव. उन्होंने इनका नाम बुलाया एवलिन का, लेकिन ये अपनी जगह से उठी नहीं. आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हर्ड, सेज इजाबेल ग्लेनी. इजाबेल ग्लेनी इज द नेम ऑफ एवलिन ग्लेनीज मदर.
एवलिन ग्लेनी की मदर का नाम है ईसाबेल ग्लेनी, और शी रिकॉल्ड, वो याद करती हैं कि जब इनका नाम बुलाया गया तो ये अपनी जगह से नहीं उठी। तब इनको अचानक सडनली शी रियलाइज्ड, इनके मदर ने रियलाइज़ किया कि ये सुन नहीं सकती है। For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers, but by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. ये सब कुछ थोड़े टाइम तक उन्होंने क्या किया, क्योंकि बच्चे कॉन्शियस हो जाते हैं बहुत ज़्यादा कि समवन विल मेक फन, चश्मा लगाने वाले बच्चों को चिढ़ाते हैं, तो ऐसे ही इनको भी प्रॉब्लम थी। तो शी ट्राई टू कंसील, उन्होंने छुपाने की कोशिश की, लेकिन टाइम के साथ जब हम अपनी किसी छोटी मोटी प्रॉब्लम को छुपाते हैं तो वो टाइम के साथ बढ़ जाती है। तो उनकी डीफनेस भी बढ़ गई। व्हेन शी वॉज 8 years, जब 8 साल की थी तब उनके मदर को रियलाइज़ हुआ था, और नाउ शी वॉज 11। तो उन्होंने काफ़ी टाइम तक उसको छुपाया फॉर 3 to 4 years, और जब इनके मार्क्स बहुत ज़्यादा कम होने लगे, डिटीरियोटेड मीन्स कम होने लगे, तब इनकी हेड मिस्ट्रेस ने इनके पेरेंट्स को कहा कि प्लीज़ इस बच्चे को, अपनी डॉटर को आप किसी स्पेशलिस्ट को दिखाइए। तो व्हाट हैपेंड व्हेन दे वेंट टू अ स्पेशलिस्ट, जब गए वहाँ पर तो क्या हुआ होगा, तब it was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. धीरे धीरे इनकी एक नर्व डैमेज हुई। जब ये स्पेशलिस्ट के पास गए तब उन्होंने बताया कि धीरे धीरे ग्रेजुअली इनकी एक नर्व डैमेज हो गई है, और इनकी जो हियरिंग है, सुनने की जो पार है, वो बहुत ज़्यादा ख़त्म हो चुकी है। They were advised that she should be fitted with hearing aids, इसको हियरिंग एड्स लगा दिए जाएं, एंड सेंट टू ए स्कूल फॉर अ डीफ, और इनको एक स्पेशल स्कूल जहाँ पर डीफ बच्चों को पढ़ाया जाता है, इनको वहाँ पर एडमिट कराया जाए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सेज एवलिन, और अचानक हर चीज़ ब्लैक लगने लगी। ब्लैक मीन्स शी वॉज डिप्रेस्ड, शी हैड लॉस्ट हर होप। जब इतनी बड़ी बात उन्होंने सुनी, बिकॉज शी वॉज अ एस्पायरिंग म्यूजिशियन, और जब उनको ये पता लगा कि मुझे सुनाई नहीं दे सकता है, आई एम डिसेबल्ड, तो इट वॉज अ कंप्लीट शॉक फॉर हर। पैराग्राफ 3, बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवलिन हार नहीं मानने वाली थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। उन्होंने ये डिटरमाइंड मीन्स दृढ़ निश्चय, उन्होंने एक दृढ़ निश्चय कर रखा था कि मैं एक नॉर्मल लाइफ, जैसे नॉर्मल बच्चे रहते हैं वैसे ही रहूँगी, और मैं अपना जो म्यूज़िक में इंटरेस्ट है उसको परस्यू करूँगी, आगे बढ़ाऊँगी। One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. Here in your book there is a picture of xylophone. You can notice it. ये है xylophone की पिक्चर। तो इस तरीके का ये एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है, और एक दिन एवलिन ने एक लड़की को xylophone बजाते हुए देखा, एंड शी डिसाइडेड कि मैं भी इसको बजाना सीखूंगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, बट परकशनिस्ट रॉन फॉर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। उनके जो ज़्यादातर टीचर्स थे उन्होंने इनको डिस्करेज किया, उनको बताया कि आप सुन नहीं सकते हो तो हाउ कुड यू लर्न म्यूज़िक। लेकिन एक परकशनिस्ट थे, परकशनिस्ट मीन्स ड्रमर, जो ड्रम बजाते हैं, ड्रमर, रॉन फॉर्ब्स जिनका नाम था, रॉन फॉर्ब्स, इन्होंने इनकी पोटेंशियल मीन्स ये कर सकती हैं इस चीज़ को पहचाना। ही बिगिन बाय ट्यूनिंग 2 large drums to different notes, और उन्होंने इनको सिखाना शुरू किया, और उन्होंने क्या किया, 2 बड़े बड़े ड्रम्स, 2 large drums ले करके उनको डिफरेंट नोट्स मीन्स अलग अलग ऊंचाई पर सेट कर दिया, कोई ऊपर कोई नीचे ऐसे। Don't listen through your ears, he would say. Try to sense it some other way, says Evelyn. तो इन्होंने क्या कहा, रॉन फॉर्ब्स ने, कि आप
म्यूज़िक को अपने कानों से सुनने की कोशिश मत करो, क्योंकि वहाँ से तो आपको आवाज़ आएगी नहीं. ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे. इसको सेंस करने की, फील करने की कोशिश करो अपने और बॉडी पार्ट्स से, किसी और तरीके से. Says Evelyn, suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up. Higher drum को कैसे फील कर सकती थी? उन्होंने कहा, एवलिन ने, कि सीखते सीखते अचानक इनको रियलाइज़ हुआ कि जो हायर ड्रम है, जो ऊंचा वाला ड्रम है, उसको ये अपने वेस्ट अप मीन्स वेस्ट के अपर पार्ट से फील कर सकती हैं. एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन. और जो लोअर ड्रम है उसको वेस्ट डाउन मीन्स वेस्ट के नीचे वाले पार्ट से फील कर सकती हैं. Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. Forbes ने इसी तरीके से उनको सिखाना जारी रखा और very soon Evelyn discovered कि वो जो हैं म्यूज़िक के कुछ नोट्स अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट्स से, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से सेंस कर सकती हैं. I had learned to open my mind and body to sounds and vibrations. The rest was sheer determination and hard work. Evelyn says कि मैंने ये सीख लिया कि कैसे मैं अपने माइंड को और अपनी बॉडी को साउंड्स और वाइब्रेशंस को फील करने के लिए फ्री कर सकती हूँ, ओपन कर सकती हूँ. मीन्स वो अपने दिमाग को और अपनी बॉडी को इस तरीके से ढाल रही थी कि वो अपने उस साउंड और वाइब्रेशंस को फील कर सकें. और बाकी का सब कुछ कैसे हुआ? वो हुआ डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क से. बहुत मेहनत की, बहुत ज़्यादा उन्होंने पक्का इरादा कर लिया था कि मुझे तो ये सीखना ही सीखना है. सो पैराग्राफ 4. She never looked back from that point onwards. She toured the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16, she had decided to make music her life. इसके बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा. ये जब 16 years की थी तब ये यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड जिसको हम कहते हैं, ब्रिटेन जिसको हम कहते हैं, वहाँ पर एक यूथ ऑर्केस्ट्रा का पार्ट बन के टूर पर गई. ऑर्केस्ट्रा क्या होता है? जहाँ पे बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ परफॉर्म करते हैं. शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ. और यहाँ पर उन्होंने ये डिसाइड किया कि ये म्यूज़िक को ही मैं अपनी लाइफ बनाने वाली हूँ. She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest mark in the history of the Academy. Wow. इन्होंने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक जो लंदन में है वहाँ पर ऑडिशन दिया, टेस्ट दिया और वहाँ पर उस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक RAM की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए. मीन्स इनसे पहले किसी भी स्टूडेंट ने वहाँ पर इतने मार्क्स स्कोर नहीं किए थे. दैट वॉज ग्रेट. शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रा वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस. और फिर ये धीरे धीरे, ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे, ये ऑर्केस्ट्रा यानी कि ग्रुप परफॉर्मेंस से सोलो परफॉर्मेंसेस की तरफ आने लगी. मीन्स ये ग्रुप के बजाय सिंगल सोलो परफॉर्म करने लगी. एट द एंड ऑफ अ 3-year कोर्स She had captured most of the top awards. और जब ये 3 साल का कोर्स इन्होंने वहाँ से किया तो उस टाइम पर इन्होंने जितने भी बड़े बड़े अवार्ड्स थे, जितने भी टॉप अवार्ड्स थे, वो सारे, ऑलमोस्ट सारे के सारे इन्होंने जीते. पैराग्राफ 5. And for all this, Evelyn won't accept any hint of heroic achievement. If you work hard and know where are you going, you will get there. ये इनका कहना था. वो अपने आप को इतना सब कुछ होने के बाद कि कानों से सुन नहीं सकती हैं लेकिन फिर भी म्यूज़िक सीखा और उसके बाद भी वो अपने आप को हीरो नहीं मानती कि मैंने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी किया है. वो कहती हैं इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करते हो एंड यू नो वेयर यू आर गोइंग, और आपको पता है कि आपको कहाँ पहुँचना है, कहाँ जा रहे हो आप, मीन्स क्या करना है लाइफ में, देन यू विल गेट देयर. तो आप उसको पालोगे, आप वहाँ तक पहुँच जाओगे.
and she got right to the top, the world's most sought after multi-percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule. और अपने हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन और क्लैरिटी ऑफ माइंड की वजह से वो टॉप पर पहुंची और वो वर्ल्ड की सबसे सॉट आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट मीन्स बहुत सारे तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना जानती थी. और उन्होंने किस चीज़ में मास्टरी की? लगभग 1,000 इंस्ट्रूमेंट्स वो बजा पाती थी. इट मीन्स कि वर्ल्ड में शायद ही कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऐसा होगा जिसको एवेलिन बजाना ना जानती हूँ. एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम शी वॉज हैविंग अ हेक्टिक इंटरनेशनल स्केड्यूल मीन्स पूरी दुनिया में घूम घूम करके वो अपनी परफॉर्मेंसेस देती थी. So this is all for this class. We'll meet in next session with rest of the chapter. Till then, take care.